Before we start the talk, we will catch a glimpse of what AMP is all about. AMP is a non-profit organization started in the year 2007, registered in India, USA, UK, and Australia. It has been serving our country in the field of education, employment, and empowerment, and has a vision to positively impact lives of 10 million people by 2030, inshallah. AMP's mission is to serve the underprivileged to benefit the society and nation as a whole. AMP's vision to be a model community which is advanced in education, socially progressing, culturally vibrant, politically influential, and economically dynamic. Coming to the achievements, under the school development programs, 2,800 plus skill development lectures were delivered, connected with 800 plus schools. 281,000 students were benefited, and 110 plus teachers training and parenting workshops were conducted. Employment Assistance Cell organized 360 plus job fairs and job drives, which helped in the employment of 21,000 plus candidates. 220 plus employability trainings were conducted, and 17,000 plus degree students were benefited. Scholarships and self-employment, 800 plus higher education scholarships were given, 860 plus towards orphans education, 425 plus families were benefited from this program. AMP's Resource Center has 660 plus career counselors and 2,500 plus students have been counseled. 50 plus career guidance documents and 1,500 plus career chart distribution can be found. Awards and partnerships, 380 plus renowned educationalists connected and awarded, 50 plus partnerships including state governments, and 100 plus NGOs. New digital initiatives, AMP has recently launched indiazakat.com, indiamentors.com, and empowerjobs.com. Indiazakat.com is India's first crowdfunding platform where zakat seekers and zakat givers are unified. Its objective is to serve the needy. Indiamentors.com is a mentorship portal for students from different backgrounds to be mentored by esteemed members of the community. Empowerjobs.com is a free portal to help job seekers connect with the employers. It also offers skill training and employability training programs. AMP's reach currently has more than 140 active chapters in 28 states, 16 countries with 6,000 plus active members. Its online presence consists 125,000 plus members and professionals connected on various social media platforms. To join AMP, visit www.amp.org/joinamp. If you have any questions regarding the topic for today, drop in the chat box. We will have a question and answer session at the end. Okay, without further ado, I would like to introduce our speaker for today's topic, Mr. Shahnawaz Khan, founder principal of Sabri Public School, Bareilly. He has 30 years experience in the field of education as head of schools and has taught over 7,000 students in accountancy and finance, including CBSE, ISC, graduate and postgraduate students. He has an expertise in the re-engineering of schools, curriculum designing, educational leadership, and building confidence in teachers by innovative teaching strategies to help them in classroom management. He is also passionate about connecting with students and making them excel in all fields. A very hearty welcome to you, sir. Over to you. Assalamu alaikum. Hope you all are good. Welcome to the session. This session will be around 45 to 50 minutes, and after the session, in the end, we'll take a question answer session, inshallah. So let's get started. I'm sharing my screen. Today's topic is career in
commerce and finance. What should I do? Student ask this question, whether MBA, whether CA, CFA, CMA, or CS. So I think this is not a correct way of choosing a career. You should start thinking like this. The first question will be, what are the career options in finance and commerce? आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि कॉमर्स और फाइनेंस में हमारे पास कौन कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं। जब आप ऑप्शंस को जाएंगे, जब आप करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, तब आप ये समझने में कामयाब हो सकेंगे कि विच कोर्स कॉम्बिनेशन इज बेस्ट सुटेड फॉर अ स्पेसिफिक करियर ऑप्शन। इंशाल्लाह अभी हम जैसे जैसे स्लाइड्स को मूव करेंगे, आप इस सेशन के एंड तक ये जानने की कोशिश करेंगे मेरे साथ कि करियर ऑप्शंस की डायरेक्शन में अगर हम जाएं कि कौन कौन से पद हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे। अगर हम कॉमर्स और फाइनेंस फील्ड में आते हैं तो कहीं जाकर उस डायरेक्शन से आप बाहर आएंगे, उस अपने माइंडसेट से बाहर आएंगे जो कि एक कॉमर्स स्टूडेंट को लगता है कि जैसे कि हम लोग हमेशा से सुनते हैं कि 12th स्टूडेंट है या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं कि वो एक दो डायरेक्शंस लेकर चलते हैं कि मुझे सीए करना है या सीएस और सीएमए। तो पहला जो मेरा फोकस है वो इस बात पर है कि बजाय इसके कि हम ये जानें कि मुझे डायरेक्टली एमबीए या सीए में जाना है, उससे पहले मैं कॉमर्स को या फाइनेंस फील्ड्स को एक्सप्लोर करूं। आप अगर क्रिकेटर हैं और आप एक प्लेग्राउंड में जाते हैं बैटिंग करने, तो जब पिच पर आते हैं तो एटलीस्ट आप पहले फील्डर्स की पोजीशन चेक करते हैं, तभी आप अपनी इनिंग को स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से आपको अपने करियर को जितना अच्छा आप प्लान कर लेंगे, ये आपकी ये समझ लीजिए कि आने वाले जो 5-6 साल जो हमारे जाएंगे इंशाल्लाह, जो 12th स्टूडेंट है हमारे साथ हैं और जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या ग्रेजुएशन पास आउट भी हैं, तो एटलीस्ट आपके अगर पास आउट हैं तो आने वाले 3 साल, और अगर आप अभी फ्रेशर हैं, अभी आप कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आपके जो शुरू के ये 4-5 साल हैं, ये अगर एक अच्छी डायरेक्शन में आप ले गए तो इंशाल्लाह आप एक अच्छा लाइफस्टाइल और आपको एक अच्छा जैसे कह सकते हैं हैप्पी जर्नी जो आपकी रहेगी करियर की, वो रहेगी इंशाल्लाह। अदरवाइज हमें कहीं ना कहीं 5-6 साल के बाद महसूस होता है कि कहीं हम गलत ट्रैक पर तो नहीं आ गए, फिर वो एक बहुत मुश्किल डिसीज़न हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यू टर्न हम नहीं ले सकते। तो पहली चीज़ जो ज़रूरत है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम से जाना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी हों जो अभी साइंस स्ट्रीम से हैं या ह्यूमैनिटीज़ से उन्होंने अभी अपने एग्ज़ाम्स को या अपने बोर्ड्स को क्लियर करने के लिए जा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो तो एग्ज़ाम्स नहीं हुए। तो आपके पास कोई भी फील्ड हो, आप पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉमर्स में हम किस किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मैं बैंकिंग में जाऊंगा या मैं इंश्योरेंस में जाऊंगा या मैं टैक्सेशन में जाऊंगा या मैं ऑडिटिंग में जाना है मुझे, तो फिर आप उससे कनेक्ट कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर होगा वो चूज़ कर सकते हैं। वो भी हम इंशाल्लाह यहाँ पर अभी देखेंगे। और आखिर में हम जो देखेंगे कि किस करियर के लिए आपको किस स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से आते हैं कॉमर्स में, साइंस में तो अगर आप पीसीएम से हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन यहाँ पर हमें पहले से थोड़ा सा एक माइंडसेट बना के चलना पड़ता है कि हमारा अपना कितना इंटरेस्ट है। कभी कभी ऐसा होता है जो हमने ऑब्जर्व किया है यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के साथ, कि जब उनको साइंस में जो मेरिट लिस्ट आउट होती है वहाँ पर जब हमें एडमिशन्स नहीं मिलते हैं तो हम सेकंड ऑप्शन हम कॉमर्स लेते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि वो एक जैसे कह सकते हैं कि मजबूरी है। तो
इस तरीके से अगर हम अपने डिसीजंस को सेट करेंगे तो आने वाले टाइम में वो पैशन बहुत कम बच्चों में देखा गया है कि आपने स्ट्रीम चेंज किया और मजबूरी में किया। एक होता है कि मुझे मालूम है कि यहाँ पर मेरे लिए बहुत अच्छा एक ब्राइट फ्यूचर है, इसलिए नो डाउट कि आपको करना चाहिए अगर आपको लगता है। तो यहाँ पर कुछ जो बेसिक स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, अपने स्लाइड्स को आगे बढ़ाएंगे, तो आपको महसूस होने लगेगा कि ये स्किल सेट हाँ मुझ में है, मैं इस को तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। और अगर नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत टाइम है हमारे पास कि हम कौन कौन सी कोर स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। ख़ास तौर से जब अभी कॉलेज ऑफ है, आगे अभी जल्दी चांसेस कम है, तो ये कुछ महीनों का जो टाइम है एटलीस्ट आप इसमें अपने को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने को अपडेट कर सकते हैं। तो पहला जो मैंने जो यहाँ पर आपको बार बार जोर दे रहा हूँ वो ये इस बात पर दे रहा हूँ कि यू शुड start like with the career options first, with the course combination, and then the skill sets required for that particular course field, inshallah. तो जब हम कॉमर्स की बात करते हैं और फाइनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप ये स्लाइड में मैं सारे सेक्टर्स को नहीं नोट कर सकता था, यहाँ पर नहीं आपको दिखा सकता था, लेकिन एक ब्रॉड आइडिया जो हमारे सामने है जो हमारी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो समझते होंगे, और बाकी बच्चों के लिए हम दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक लिमिट नहीं है। आप किस डायरेक्शन में जाते हैं, जिस फील्ड में भी जाएंगे, जिस डोमेन में भी आप जाएंगे, तो इंशाल्लाह एक ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहे हैं। तो कॉमर्स का स्कोप या कॉमर्स के डोमेन में अगर हम बात करें या फाइनेंस के डोमेन में, आपको अगर जिस कोर्स में भी आप देखेंगे, चाहे वो बीकॉम है, बीबीए है, आगे ग्रेजुएशन में आप लाइक पीजी जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ये पूरी जर्नी जो आपको मिलेगी इंशाल्लाह, तो वो इस तरीके से आप अपने को किस फील्ड में एक्सप्लोर करते हैं वो सब आपके सामने आ रही है। तो हम इंडस्ट्री, ट्रेड और इंडस्ट्री से अगर ये तो एक ब्रॉड टर्म्स है, बैंकिंग में जैसे हम देखते हैं तो कोई एक सेगमेंट अब नहीं रहा है। बैंक्स में अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अमाउंट डिपॉजिट और जो करने जाते हैं और विड्रॉल करने जाते हैं। आज बैंक्स में सेल्स की फील्ड में भी, जैसे अभी हम आगे देखेंगे, जॉब हैं बैंक्स में, मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में भी जॉब्स हैं। तो हर फील्ड में आपको डिफरेंट डोमेन में जॉब्स दिखाई देंगे, हायरिंग दिखाई देगी। आप यहाँ पर अपनी जर्नी बैंक से लेकर सर्विस सेक्टर में, ई कॉमर्स में, स्टार्टअप में, केपीओ में, आप इन्वेस्टमेंट बैंक में, असेट्स मैनेजमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में, आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। तो अब हमें ये एक विजन मिल रहा है, हमारे पास एक पिक्चर समझ में आ रही है कि हम कॉमर्स फील्ड में जब आते हैं तो वहाँ पर हमारे पास किस किस तरीके से डिफरेंट फील्ड्स हैं, हमारे लिए मौजूद हैं, और हमारे लिए बस ज़रूरत है कि हम इनके साथ बेटर कॉम्बिनेशन को बना सकें। तो मैं इसको आगे इसको मैंने सम अप किया है कि बिजनेस के अगर हम कोर डोमेन्स को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक पिक्चर सामने आ रही है कि आप चाहें तो एचआर से अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप एचआर में जा सकते हैं। वहाँ पर स्टाफ रिक्रूटमेंट से लेकर आप स्टाफ सिलेक्शन, उसका स्टाफ का एवेल्यूशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ये सारी फील्ड्स रहती हैं। और ये फील्ड आप में से उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी है जिन्हें थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा या डेटा हैंडलिंग में कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो आपके लिए ये एक डोमेन हो सकता है कि आप इसमें अपने को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो हमारा कॉमर्स का आज का जो मेजर टॉपिक रहा है वो फाइनेंस है। यहाँ पर तो आपके लिए मौके ही मौके हैं, क्योंकि ये पूरी फील्ड आपके
आपके पास है, यहाँ पर आपका कंप्लीट होल्ड रहेगा और किस कोर्स के साथ आप इस फील्ड में आएंगे। तो फाइनेंस में हम लोग सभी कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पर हम फाइनेंशियल सर्विसेज को इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पर हम अकाउंटिंग को, बुक कीपिंग को, टैक्सेशन को आप इसमें फाइनेंशियल रिसर्च, एनालिसिस, सारा कुछ इसी में कवर अप होता है। चाहे हम इन्वेस्टमेंट बैंक से बात करें, चाहे हम एक सोल ट्रेडर की बात करें, फाइनेंस की ज़रूरत तो हर जगह है। यानी जहाँ पर भी मनी इन्वॉल्व है, फाइनेंस तो वहाँ हो गई। और जब फाइनेंस का क्वेश्चन होगा तो वहाँ कॉमर्स स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ फाइनेंस के स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका इस डायरेक्शन में जो कोर्स हैं वो इंशाल्लाह अभी हम देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कोर डोमेन में आते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग काफ़ी एक प्रेस्टिजियस करियर रहा है ये, और ये रहेगा। मतलब ये सारे जो भी आपको डोमेन्स दिखाई दे रहे हैं, कभी कभी बच्चे ये पूछ लेते हैं कि कौन से करियर में जाना चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक है, जहाँ पर हमें आगे जाकर स्कोप मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप ये समझ लें कि चाहे आप HR में जा रहे हैं तब भी आपके पास स्कोप है और आगे तक रहेगा। फाइनेंस में जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने को ग्रो करने की और अपने को सरवाइव के साथ साथ अपने को स्टेबल करने की। नेक्स्ट फील्ड जैसे मैं बता रहा था, सेल्स और मार्केटिंग, नॉर्मल केस में आप सभी इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे, चाहे हम कॉमर्स से हैं या नॉन कॉमर्स से स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास इस फील्ड में ब्रांड प्रमोशन से लेके, ब्रांडिंग से लेकर मार्केटिंग तक अगर हम बात करें या सेल्स के सारे डोमेन्स में हम बात करें तो एक चार्मिंग करियर आपके सामने आता है। कुछ लोगों को ऑपरेशंस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बैक एंड अगर हम कह सकते हैं बिजनेस का, तो यहाँ पर भी आपके पास काफ़ी मौके होंगे। और लास्ट अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट जहाँ पर हम डेवलप करते हैं, और ये किसी भी बिजनेस का एक बैकबोन माना जाता है कि जहाँ पर अगर जाहिर सी बात है कि आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से वक्त बदल रहे हैं, यानी जिस तरीके से हम डायनेमिक वर्ल्ड में जा रहे हैं, जिस तरीके से हम हमारा चेंजिंग वर्ल्ड हमारे सामने आ रहे हैं, और वहाँ पर अगर हमने अपने को अपडेट नहीं किया तो हम मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका R&D होगा, वहाँ पर हमारे पास अगेन वहाँ पर फाइनेंस से अगर हम उसे कनेक्ट करें तो फाइनेंशियल रिसर्च एनालिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। और आज की वक्त में अगर हम इस पूरे को सम अप करें तो फाइनेंस ही एक ऐसा सेक्टर दिखाई देगा आपको कि जहाँ पर आप इंशाल्लाह एक अच्छे कोर्स का अगर आपने कॉम्बिनेशन बना लिया तो एक बेटर लाइफ की तरफ आप बढ़ सकते हैं। मैं फाइनेंस को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि मोस्टली कॉमर्स स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक इंट्रोवर्ट हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैक एंड से आप सपोर्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो वहाँ पर क्योंकि आप एक सोशलाइजिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो वहाँ पर आपके लिए सेल्स और मार्केटिंग का भी करियर बहुत अच्छा करियर हो सकता है। तो यहाँ साथ साथ हम लोग स्किल्स को इसलिए स्टार्टिंग से ही डिस्कस करते चल रहे हैं कि आप सोचें कि मैं यहाँ पर किस फील्ड में और कहाँ पर अपने को स्टेबल कर पाऊंगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने डिफरेंट डोमेन्स देखे कि हम किस तरीके से फाइनेंस और कॉमर्स के केस में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पर हम लोगों ने अपनी प्रेजेंस को चेक करना है कि हम कहाँ पर ज़्यादा बेटर फिट हो सकते हैं। तो पहली फील्ड ऑब्वियसली इसको मैंने फर्स्ट नंबर पे मार्क किया है, यहाँ पर अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ऑडिटिंग।
जो हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं कि स्टार्टिंग से आपने अपनी करियर की जो कॉमर्स स्ट्रीम की स्टार्टिंग की वो बुक कीपिंग से की, और वो ही ये डायरेक्शंस हैं, वो डायरेक्शंस इस तरफ अब आपके सामने आ रही हैं एज ए करियर। जिन लोगों ने अभी स्टार्ट करना है अपनी जर्नी को, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए अगर आपका टारगेट ये है कि मुझे फर्म्स को लाइक ऑडिट सेक्शन में मुझे जाना है, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, तो आपके लिए वहाँ पर कौन सा कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप केपीओज में यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको इस फील्ड से कनेक्टेड कोर्स करने चाहिए, और आप कंसल्टेंसी फर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक हॉट फेवरेट डोमेन रहा है जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, और ये छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक आपको यहाँ पर कोई किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती। अगर हम कोर्स सिलेक्शन से बात करें, अगर हम गाइड सिलेक्शन से बात करें, अगर हम अगर हमें कोचिंग की भी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से इस सेगमेंट में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती है। सारे जो कोर्सेज इस फील्ड में, इस डोमेन में हम देखेंगे, वहाँ पर इंशाल्लाह आपको अपने किसी भी आप सिटी में रह रहे हों, वहाँ पर इसकी प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। तो पहला डोमेन आपके पास ये हो सकता है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पर अगेन जैसे मैंने बताया कि आपकी थोड़ा सा न्यूमेरिकल स्किल्स अच्छी रहनी चाहिए, तो आप जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी लॉजिकल थिंकिंग का यहाँ पर रोल रहेगा। और अगर आप अभी मैं थर्ड सेक्शन पे मूव करता हूँ, पहले फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ जाता हूँ मैं, कि इस सेगमेंट में अगर आप आते हैं, तो आपके पास डिफरेंट जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, वो फाइनेंशियल सर्विसेज में मेनली अगर मैं बात करूँ तो बैंकिंग में आपको बहुत अच्छा करियर मिल सकता है। बैंक्स में मैंने जैसे अभी पहले भी बताया था कि हमारे पास बहुत तरीके के रोल हो सकते हैं। अगर आप सेल्स और मार्केटिंग से यहाँ पर आना चाहते हैं, तो सेल्स और मार्केटिंग के ज़रिए भी आप यहाँ पर, यानी बैंक्स में क्या होता है, लाइक आज की डेट में अगर हम बात करें, आपके पास भी बहुत सारी कॉल्स आती होंगी। वो कॉल्स चाहे तो डीमेट अकाउंट के लिए आ रही हैं, चाहे वो क्रेडिट लोन्स के लिए आ रही हैं, चाहे वो पर्सनल लोन के लिए आ रही हैं। तो ये क्या हो रहा है कि बैंक्स भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट सेलिंग के लिए अगर आप सेल्स से इस डायरेक्शन में आना चाहते हैं, तो सेल्स के डोमेन से आप बैंक में एंट्री कर सकते हैं। अगेन बैंक में अगर हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट के सेगमेंट से, अगर आप क्रेडिट रिस्क में जा रहे हैं, आप ऑपरेशनल रिस्क में जा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप बैंकिंग फील्ड में एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट इस डायरेक्शन में इंश्योरेंस सेक्टर आता है। शायद आप सारे ही लोग बखूबी जानते हैं, आपके पास अगर व्हीकल हैं तो आप उनका इंश्योरेंस कराते हैं, अगर लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है, तो ये सारा जो भी वर्क है मोस्टली हम सभी इससे बखूबी वाकिफ़ होते हैं। तो अगर आपको अपना करियर बनाना है, तो इंश्योरेंस में इसी डायरेक्शन में ट्रेजरी में आप करियर बना सकते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट एक अगेन एक बहुत अच्छा डोमेन है, जहां पर बहुत ज़्यादा ग्रो देखने को मिल रही है इंडस्ट्री में। तो वेल्थ मैनेजमेंट में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने क्लाइंट का जो वेल्थ है उसको प्रॉपर मैनेज करना, यानी उनके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करना। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आता है, आप मैं आपसे जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया कि आप क्या करोगे कि आप हर करियर का एक थोड़ा सा करियर डोमेन में जाओगे, आप देखोगे कि यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड्स हैं, और अगर आप स्टार्टिंग में ये पूरा एक टाइम दे देते हैं अपने करियर को शेप देने के लिए, तो ये आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये काफ़ी प्रोडक्टिव टाइम हो जाएगा आपके लिए, और आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी बेटर हो सकता है। तो आप इस फील्ड में भी अपना करियर, और जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल सर्विसेज की लिमिट नहीं है। मैंने यहाँ पर एक कुछ मुख्तसर
करियर ऑप्शंस आपको दिए हैं। प्रोफेशनल एडवाइजरी एज ए आप एडवाइज़र भी अपने क्लाइंट्स के लिए वर्क कर सकते हैं। मेजर कोर जो मैंने मिड में रखा है, जो आगे काफ़ी ज़्यादा जिसके लिए डिमांडिंग करियर अगर हम कहें कॉमर्स में और फाइनेंस में ख़ास तौर से, तो वो फाइनेंशियल रिसर्च एंड एनालिसिस डोमेन है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट बैंक्स के थ्रू वर्क कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस यहाँ पर भी होंगे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स का मीन्स ये कि हम अपने क्लाइंट्स को के लिए स्टॉक से लेकर उनके लिए टोटल हम उनके लिए प्लान करते हैं कि कौन सा स्टॉक उनके लिए बेटर रहेगा, उनका टारगेटेड आरओआई क्या है और किस तरीके से उसको हम अचीव करें। तो ये काफ़ी आपके लिए बेटर हो सकता है उन लोगों के लिए। यानी ये जो अगर मैं फाइनेंशियल रिसर्च की बात करूं तो ये काफ़ी हद तक उन लोगों के लिए है ये पूरा डोमेन जो डेटा पे जो एनालिसिस में जो अपने को इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कि हाँ चीज़ों को एनालाइज करना, यानी उस पर डिबेट कर सकते हैं आप। अगर अभी बात करें तो केस स्टडी ले लेकर आप जा सकते हैं। तो इस पूरे फाइनेंशियल रिसर्च सेक्शन में आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें, उनको रीडिंग करना देखें कि किस तरीके से इसमें हम लोग पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं और फिर एनालाइज करके हम उसमें पूरी कंपनी की नेटवर्थ से लेके सारी कुछ उसमें मतलब आपको खुद इंटरेस्ट महसूस होने लगेगा कि हाँ ये फील्ड जो है ये अकाउंट्स से यानी वहाँ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं और यहाँ हम उसको पूरा एक तरीके से रिसर्च है, पूरा R&D जो हमारा था जैसे प्रोडक्ट में होता है, यहाँ हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको लगा देते हैं। तो ये डोमेन आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। फिनटेक मैंने इसको हाईलाइट किया है, रीज़न ये है कि यहाँ पर क्या है कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी इन दोनों को हमने कॉम्बाइन किया तो एक करियर ऑप्शन आ जाता है फिनटेक का। मोस्टली खैर ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है जो मैथ्स बेस से होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इंजीनियरिंग के बच्चे भी आते हैं लाइक बीटेक करने के बाद। तो अगर आप उसके साथ एमबीए फाइनेंस करते हैं तो ये एक डुअल आपका जो स्पेशलाइजेशन है इसका आप काफ़ी अच्छी तरीके से एडवांटेज ले सकते हैं। केपीओज मैंने अभी आपको बताया कि जैसे लाइक सपोज कुछ एक बैंक को हम इमेजिन करें, वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है वो बैंक के किसी कस्टमर का, और वहाँ पर बैंक फिर डायरेक्ट हायरिंग नहीं करता, वो इसको आउटसोर्स कर देता है। तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में वही कुछ मिल सकता है। लाइक अगर हम एक वेल्थ मैनेजमेंट का हमारे पास प्रोजेक्ट आया हुआ है तो हम उसको आउटसोर्स करने की जगह वहाँ पर हम क्या कहते हैं डायरेक्ट हायरिंग करने की जगह आउटसोर्स कर देते हैं। तो ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप वर्क कर सकते हैं, आप हेज फंड्स में वर्क कर सकते हैं जो म्यूचुअल फंड से डिफर होता है। काफ़ी रिस्की ट्रांजैक्शंस यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे आप, जैसे हम लोगों का अकाउंट्स में कॉमर्स में हम लोगों ने जो हमारे स्टूडेंट्स हुआ करते हैं कॉमर्स फील्ड से, वो जानते हैं कि हम लोग तो स्टार्टिंग से बात करते हैं कि ग्रेटर इज़ द रिस्क बेटर इज़ द प्रॉफिट। वो चीज़ आपको यहाँ हेज फंड्स ट्रांजैक्शंस में देखने को मिलती है। आप इसको एक्सप्लोर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट एंट्री करना है किसी भी सेगमेंट में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आप प्राइवेट इक्विटी में जा सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि जैसे लाइक स्टार्टअप्स हैं, उनको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फंड्स मैनेज कराना, उनके लिए पूरा फंड मैनेज कैसे होगा, टेक ओवर और मर्जर एक्विजिशन, ये सारी चीज़ें जब आपको इधर आप अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इस डोमेन में भी। स्ट्रेटेजिक फाइनेंस किसी भी कंपनी का जिसे हम कह सकते हैं कि सबसे कोर फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो इसी डोमेन में लिए जाते हैं, चाहे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो, चाहे डिविडेंड से रिलेटेड मैटर हो या इन्वेस्टर्स रिलेटेड मैटर हो। जैसे आप किसी कंपनी में अगर CFOs देखते हैं तो वो मोस्टली इसी डोमेन से आते हैं
और ये भी आपके लिए एक काफ़ी अच्छा करियर रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट ये काफ़ी ज़्यादा हायरिंग आज की डेट में हमें इसमें देखने को मिल रही है। रिस्क मैनेजमेंट में आप क्रेडिट रिस्क भी इसी में इंक्लूड होता है, मार्केट रिस्क भी आता है, ऑपरेशनल रिस्क भी आता है। आप किसी भी डोमेन में जा सकते हैं और इन सभी डोमेन्स के लिए मैंने बताया कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज हुआ करते हैं, यानी कुछ ख़ास कोर्स हैं जो इन्हीं डोमेन में हमें जाने के लिए करना चाहिए। और अदरवाइज़ अगर हम बात करें तो वो सारा कुछ क्या होता है कि एक बच्चे की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप एंटर तो हो जाते हैं किसी भी कोर्स से, लेकिन बाद में आप कैसे ग्रो करते हैं तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। तो इसी को सम अप करने के लिए अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ कि अगर मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज में जाने, मैं अगेन आपको दिखा रहा हूँ कि फाइनेंशियल सर्विसेज आपकी ये एक सेगमेंट था बैंकिंग इंश्योरेंस, कि अगर आपको इधर जाना है तो हम किस कोर्स में अभी ऐड किया है, दैट इज अदर कोर्सेज। मीन्स आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, यानी बीकॉम वो कर रहे हैं, अब बीकॉम कर रहे हैं और उनके पास लाइक ऐसा भी हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनके पास, इतने मौके नहीं हैं कि अभी आगे ज़्यादा कुछ वो कर पाएँ, तो या फैमिली को आपकी कुछ ज़्यादा ही फाइनेंशियल सपोर्ट की आपके साइड से ज़रूरत है, तो आप एक आउट ऑफ फाइनेंशियल ट्रैक अगर मैं बात करूं तो आप ये जो मैंने फोर्थ डोमेन दिया है आपको अदर कोर्सेज का, आप इस साइड में जा सकते हैं। उसमें सबसे पहले मैंने बात की है कि एकेडमिक्स में लाइक एज ए सपोज अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं फाइनेंस डोमेन से, कॉमर्स डोमेन से, तो वो एक अनदर करियर हो सकता है। लॉ, अभी क्योंकि हम सीएस का जिक्र करेंगे तो लॉ में अगर आप एलएलबी करते हैं और उसके बाद आप सीएस भी कोर्स कर लेते हैं तो आपको बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि जो हमारी डोमेन है जहाँ पर क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीए के कोर्स में आपको लॉ इतना कंप्लीट स्टडी में नहीं मिलता है। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरा थ्योरेटिकल ज़्यादा अच्छा है तो मैं आप उधर लॉ के डोमेन में जा सकते हैं। स्टार्टअप एक अनदर ऑप्शन रहेगा, और गवर्नमेंट जॉब ये तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फील्ड है जो कॉमर्स और नॉन कॉमर्स दोनों के लिए ओपन है, लेकिन मैंने वहाँ ये दे दिया है क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर अकाउंटेंट्स की जॉब ओपनिंग रहती हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम्स हो, किसी भी लेवल की पोस्ट हो, आपके पास वहाँ पर भी ऑप्शंस रहेंगे। ये अदर ऑप्शंस मैंने रख दिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज में आना है, मुझे लाइक बैंक्स में जाना है, मुझे इंश्योरेंस में जाना है, तो फिर ऐसी कंडीशन में मुझे कौन सा कोर्स कॉम्बिनेशन या कौन सा पर्टिकुलर कोर्स करना चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीकॉम है या बीकॉम में एंट्री लेने जा रहे हैं, तो पहले आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे और उसके साथ आपको फिर एमबीए बेटर है कि डुअल स्पेशलाइजेशन में करना चाहिए, ये आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद आप अगर किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज डोमेन में जाना चाहेंगे तो आपके पास वो जो प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस हैं एटलीस्ट वो रहेंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक्स में अगर जाएंगे तो वहाँ पर अब आपका सेल्स का भी टारगेट्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको एमबीए अगर आप डुअल में करके जाते हैं तो आपके पास एक अच्छा ग्रोथ का एक अच्छा ऑप्शन आपके पास रहेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कि बैंक्स में और किस तरीके से हम एंट्रीज ले सकते हैं, तो वो फिर डायरेक्ट एंट्री है जो आप प्रोबेशनरी ऑफिसर के एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एज जो होता है वो एमबीए कैंडिडेट को ज़्यादा रहता है। एज का सेंस ये कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और पीओ, और वहाँ पर तो जनरल कैंडिडेट सभी कैंडिडेट होते हैं, वहाँ आपका कोई कॉमर्स डोमेन का होना कोई एक बहुत बड़ा आपके लिए अचीवमेंट नहीं होता या कोई एज नहीं मिलता, और वो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन्स आज की डेट में हो गए हैं। तो अगर आप
ग्रेजुएशन बैंक के या इंश्योरेंस के सेगमेंट में जाते हैं तो एमबीए आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास प्रोफेशनल कोर्सेज हमने चाहे सीएफपी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का कोर्स कर सकते हैं। इन सारी कोर्स की डिटेल्स आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो डायरेक्ट अगर हम बैंक में, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज सेगमेंट में है, चाहे एनआईएसएम हो जो सेबी की तरफ से कंडक्ट कराए जा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के डोमेन में, तो आप उधर भी बना सकते हैं अपना करियर। वो एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं और ये डिपेंड करते हैं कि आप किस प्रोफाइल में आगे बढ़ना चाहेंगे। आप के पास ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास अनदर इसी डोमेन में अगर मैं बात कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल रिसर्च में अगर आपको जाना है वहाँ पर आपके पास कौन से कोर्सेज होने चाहिए। तो ग्रेजुएशन जाहिर सी बात है कि बीकॉम या बीबीए, और साथ में आपको फिर वहाँ पर, क्योंकि अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो या वेल्थ मैनेजमेंट हो या हम केपीओज में जाएं या फिनटेक में जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो वो क्या है कि आपके पास एनालिटिकल स्किल्स ज़्यादा होनी चाहिए। आप में रिसर्च डोमेन में आपने काफ़ी कुछ वर्क किया हो तो वो आपके पास ये एक स्पेशलाइज कोर्स है। ये इससे प्रीवियस स्लाइड में आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हमने बात की थी कि बीकॉम प्लस एमबीए फाइनेंस अगर आप मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको फोकस कर रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन करें और साथ में टॉप कॉलेजेस से अगर एमबीए करते हैं तो ये आपके पास एक एज रहेगा इस मार्केट में। और बीटेक और बीई के साथ मैंने आपको बताया था कि अगर आप एमबीए फाइनेंस से लेते हैं तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा फाइनेंशियल रिसर्च के डोमेन में। और यहाँ पर जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें हमने सीए को ना रख के सीएफए को रखा है। रीज़न क्या है कि हमने अभी बात की है कि अकाउंटिंग एक अलग डोमेन है, कि अकाउंटेंसी एक अलग फील्ड है और एनालिसिस और रिसर्च जो है ये एक अलग फील्ड है। और यहाँ पर क्योंकि ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन किया है सीएफए, इंटरनेशनल कोर्स है, आप इस डोमेन में जा सकते हैं। मैं यहाँ कोर्स के किसी भी कोर्स के बारे में ये नहीं कह रहा कि ये कोर्स कितना टफ है, बिकॉज पर्सन टू पर्सन ये तो डिपेंड करता है। आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स रहे हैं 10th में, आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स रहे हैं 12th में, कोई मैटर नहीं करता है। आपकी लाइफ तो अब शुरू हो रही है, आपको देखना है कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। और एक बार अगर आपने से टारगेट कर लिया तो फिर आपको पीछे नहीं मुड़ना है। आपके पास मौके हैं, आपके पास वक्त है, बस उस वक्त को आपको देना है। एक प्लान वे में आपको आना है, बाहर अपने को लेकर आना है, और फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह एक गोल्डन करियर आपके सामने होगा। तो बीकॉम प्लस एमबीए किसी टॉप कॉलेज से अगर आप चाहते हैं गेट के थ्रू या जेड के थ्रू, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा फाइनेंस फील्ड में। और या फिर आप सीएफए में के थ्रू आ सकते हैं। यहाँ पर एफआरएम भी एक कोर्स आप इसको भी रख सकते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर की पोस्ट भी आज की डेट में अगर हम बताएं कि हायरिंग होती हैं, इसमें भी काफ़ी हायरिंग है। और ये भी टोटल वो एक रिस्क मैनेजमेंट के डोमेन को कवर करता है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि हमें किस डोमेन में जाने के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए। इस सेगमेंट में लास्ट स्लाइड में इधर जो कोर्सेज की स्लाइड्स हैं, मैं आपको अकाउंट्स इन टैक्सेशन और ऑडिटिंग के फील्ड का अगर बात करूं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि मैंने सीए को हाईलाइट किया हुआ है। आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट टैक्सेशन में है, ऑडिटिंग में, खासतौर से ऑडिटिंग का मैं फोकस करूंगा, तो अब हमारे पास ऑप्शंस हो गए कि अगर मुझे वेंचर कैपिटल में इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट में है, मेरा इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट फील्ड में है, तो फिर मुझे जाना चाहिए इस डायरेक्शन में जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में दिखाई। और अगर मेरा इंटरेस्ट है
कि मुझे टैक्सेशन में, ऑडिटिंग में मुझे जाना है, तो फिर मैं बेटर है कि फिर मैं उस एमबीए फाइनेंस या सीएफए पे ना जाकर मैं सीए की तरफ आता हूँ। अब इस कोर्स में हम क्या करते हैं और कैसे इस कोर्स को आगे लेके जाएंगे, इंशाल्लाह इस पे भी मैं अभी बात करूँगा। नेक्स्ट, आप अगर कॉस्टिंग में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो आप सीएमए कोर्स कर सकते हैं। और इंटरनेशनल डिग्रीज में अगर आप जाना चाहेंगे तो एसीसीए या सीपीए। और मैंने एक लास्ट में शॉर्ट टर्म एक शॉर्टकट दिया है आपको, वो शॉर्टकट है बीकॉम एमकॉम। ये शॉर्टकट नहीं है एक्चुअली, ये उन बच्चों के लिए है कि हम में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं। हो सकता है कि आप में से कोई ऐसे बच्चे हमारे साथ हो जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जहाँ पर या कुछ टाइम भी हो गया है, या हम कहीं ऐसी जगह पर वर्क कर रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता। ये हालांकि एक एक्सक्यूज़ है, लेकिन फिर भी मैं एक उन बच्चों के लिए जिनको अभी रिसेंटली, मतलब बहुत जल्दी ही फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए है, फैमिली को स्टेबल करना है या कोई भी वजह हो सकती है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप बीकॉम एमकॉम और उसके साथ आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, यानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपने को इन्हांस कर सकते हैं उस फील्ड में, और आप फिर इन कोर्सेज की तरफ आ सकते हैं। तो अब हम इसको सम अप अगर करते हैं तो हमारे पास 3 फील्ड हमने डिस्कस की। अकाउंट्स की फील्ड है जिसमें अकाउंट्स टैक्सेशन, यहाँ पर अगर आपको आने हैं तो मेरा सजेशन है, ये मेरा सजेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना चाहिए, आप पहले अपने को प्लस माइनस करेंगे तो सीए आपके लिए फेवरेट हो सकता है। अगर आप फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ जाते हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको सीएफए या एमबीए फाइनेंस के थ्रू अपना रास्ता बनाना है। और अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ जाते हैं तो फिर आपको ग्रेजुएशन के बाद एमबीए फाइनेंस या मार्केटिंग में करना चाहिए। अब मैं इस कोर्सेज को थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ, और ये हमारी एक डायरेक्शन है जो मैंने कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज की डिटेल्स यहाँ पर दी है। अब इनकी जो डिटेल्ड कोर्स करिकुलम है कि कौन कौन से पेपर्स होंगे, कब पेपर होते हैं, ये तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। अब और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एएमपी के इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, वी आर नॉट गिविंग एनी टाइप ऑफ पोस्टमैन जॉब टू यू। तो हम एक ओनरशिप के तहत यहाँ पर आए हैं कि हम आपको एक करियर गाइडेंस सिर्फ दे नहीं रहे हैं। अगर आपको हमारी किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ती है तो चाहे मैं हूँ या बाकी जो भी हमारे स्पीकर्स आएंगे, इंशाल्लाह हम सारे लोग आपके लिए मौजूद हैं। मैं इसीलिए स्लाइड में के लास्ट में मेरा ईमेल आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर किसी भी कोर्स के बारे में या अपने करियर के बारे में आपको कोई भी ज़रूरत महसूस होती है मुझसे कांटेक्ट करने की, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज एएमपी के जब आप वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ मेंटोर द इंडिया मेंटोर के नाम से आपको एक पोर्टल मिलेगा हमारा, जहाँ पर हम आपको आपके हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से एज ए मेंटी आपको कनेक्ट कराएंगे। तो ये वो प्लेटफॉर्म हम देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रहा क्योंकि हमारा टाइम काफ़ी हो जाएगा। तो सीए अगर आपको कोर्स करना है, आप में से काफ़ी बच्चे जिन्होंने इस फील्ड को समझा होगा, जिन्होंने 12th में, क्योंकि पूरा 1 साल आप घर पर ही रहे हैं ऑलमोस्ट लॉकडाउन की वजह से और बहुत ज़्यादा स्कूलिंग नहीं कर पाए हैं, तो आपने देख ही लिया होगा कि फाउंडेशन कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आप 30 जून तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपको नवंबर या दिसंबर जो भी एग्जाम डेट आएगी वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स देने के बाद जो 4 महीने का एक टाइम होता है रजिस्ट्रेशन के बाद, आप फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोर्स क्लियर हो जाता है, फाउंडेशन क्लियर हो जाता है, तो आप सीए के इंटरमीडिएट कोर्स में एंट्री कर सकते हैं। वहाँ पर आपके पास 8 पेपर्स, देयर विल बी 8 पेपर्स इन 2 ग्रुप्स वो रहेंगे।
जब आप उन सारे 8 पेपर्स को कंप्लीट कर लेंगे, 3 इयर्स की आपका सीए के अंडर में एक ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जिसे सीए आर्टिकल के नाम से आप जानेंगे। तो जब वो 3 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपका सीए इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आप फाइनल एग्जाम्स देंगे। फाइनल कोर्स में भी आपके पास 2 ग्रुप हैं और उन 2 ग्रुप में 8 पेपर होंगे। तो ये सीए के डायरेक्शन से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगर हम देखते हैं CFA, तो CFA में आप ग्रेजुएशन लेवल से एंट्री ले पाते हैं। वहाँ 10+2 पर नहीं है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, इंटरनेशनल मैंने बताया डिग्री है, इंटरनेशनल कोर्स है। आपको अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो आपके लिए ये एक अच्छा कोर्स होगा। एनालिसिस और रिसर्च फील्ड में अगर आप अपने को इस्टेबल करना चाहते हैं, सीएमए अगर आपका कॉस्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप सीएमए में जा सकते हैं। इसमें भी अगेन फाउंडेशन प्रोग्राम है, इंटरमीडिएट प्रोग्राम है और फाइनल कोर्स है। ACCA भी अगेन हमारे पास एक इंटरनेशनल कोर्स है और नॉलेज लेवल, स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल के तरीके से आपके पास 3 डोमेन रहेंगे। यहाँ पर भी 3 लेवल रहेंगे और अब वो आपको इंशाल्लाह क्लियर करने के बाद आप सर्टिफाइड अकाउंटेंट होंगे। सीएस को मैंने थोड़ा सा कलर सेपरेट इसलिए किया है कि मेजरली अगर हम बात करें तो ये अकाउंटिंग डोमेन से कनेक्ट नहीं करता है, ये फाइनेंस से कनेक्ट नहीं करता है। यहाँ पर बेसिकली हम लॉ की बात करते हैं, लॉ रिलेटेड मैटर जो कॉर्पोरेट में होते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो कोर्सेस हैं डिटेल वही है कि 3 स्टेजेस हैं। आप 10+2 पर एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम कर सकते हैं। हम में से जो बच्चे यहाँ पर हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी मीडियम में भी आपके पास सीए और सीएस कोर्स में ऑप्शंस रहेंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आपको मीडियम चेंज स्विच करना चाहिए, लेकिन बेटर है कि पहले आप अगर आपने अभी 12th हिंदी मीडियम से ही किया है या ग्रेजुएशन किया है तो आप एंट्री तो एटलीस्ट ले सकते हैं। लेकिन फिर उसके बीच में अगर आप अपने को स्विच कर लें, और यहाँ पर पेपर में ऐसा नहीं होता कि आपने ऑप्ट किया है मीडियम हिंदी तो आप एक पेपर आपका इंग्लिश में आता है, लाइक अकाउंट्स इंग्लिश में देना चाहते हैं, वो ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन आगे जाकर आप इसको अपने को जितना ज़्यादा अपडेट कर लें या जिसे कह सकते हैं अपनी सॉफ्ट स्किल्स में इंग्लिश इम्प्रूवमेंट को अगर ऐड कर लें तो वो आपके लिए, क्योंकि आपको आगे जाकर कॉर्पोरेट में जाना है और अगर आपको आगे जाकर अपने क्लाइंट से मिलना है तो वहाँ पर एज ए लैंग्वेज वहाँ पर इंग्लिश का इम्पोर्टेंस हम इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये वो सेक्टर्स हैं जो मैंने अभी भी आपसे पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कि किस किस इंडस्ट्री में एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट आप जा सकते हैं। तो ये अब मैं दोबारा से यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कॉमर्स में या फाइनेंस में अगर हम करियर स्किल्स की बात करें कि मेरे अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, नॉट नेसेसरली कि आप सारी ही स्किल्स को एट द फर्स्ट मोमेंट यानी एंट्री लेवल पर ही आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी स्किल्स होंगी तभी आप कवर अप कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अपने को एनहेंस करना है, अपने को आगे बढ़ाना है, लाना है अपने को सामने फ्रंट पर लाना है आपको। तो उस फील्ड में अगर हम बात करें तो एनालिटिकल स्किल्स, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल स्किल्स का और एनालिटिकल स्किल्स के बिना तो हम इस पूरे स्ट्रीम में कहीं पर भी सक्सेस नहीं कर सकते। फाइनेंशियल मॉडलिंग ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स के तरीके से भी आप कर सकते हैं। और इन सारी स्किल्स के लिए ये नहीं है कि आपको कोई बहुत महंगे कोचिंग करने हैं या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करना है। वहाँ पर क्या होता है कि आपको आप फ्री कोर्सेज देख सकते हैं, चाहे वो खान अकेडमी के हों, यूडेमी के हों। आप अपने को छोटे छोटे कोर्सेज के साथ अगर आप अपने को अपडेट करते रहेंगे तो ये आपके लिए आगे जाकर बहुत बेटर होगा। डेटा एनालिसिस, प्ले विद डेटा, जैसे हम कह सकते हैं कि ये एक फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए मस्ट हो जाता है। मार्केटिंग स्किल्स की भाई अगर मैं पहले भी आपको बता रहा था कि आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा अगर आप मार्केटिंग
मार्केटिंग फील्ड में आ रहे हैं कि आपको एक अपने ब्रांड को सेल करना है। अब वो ब्रांड कुछ भी हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग उस ब्रांड से मिल रही है जो इतना नेम फेम के साथ नहीं है, तो उसको कैसे मार्केट में स्टेबल करना है, वो सारी चीज़ें, वो स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए। थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली है, मेकिंग डिसीजन, जाहिर सी बात है कि आपको पूरा एक टीम लीड करने आगे जाकर, और वहाँ पर आपको एज ए लीडर फ्रंट पर आने, तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए। ईगल आई, ऑब्वियसली कि अगर आप इतने बड़े सेगमेंट में बात करें, अगर जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट इक्विटी की बात करी, हमने कहा कि मर्जर है, एक्विजिशन है, आप बिलियंस डॉलर की कंपनी का टेक ओवर करने जा रहे हैं, तो वो सब करना इतना पॉसिबल इतनी जल्दी नहीं होता। इन सब के लिए आपको एक्सपर्टाइज लाने के लिए अपने अंदर, क्योंकि अभी आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको इमेजिन करना है कि मैं एक ऐसे वेंचर को में एंट्री कर रहा हूँ जहाँ मुझे आते ही इस तरीके के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो ये सब क्या है कि आपका एक्सपोजर है, आप डिफरेंट वेब टॉक्स के ज़रिए, आप डिफरेंट न्यूज़पेपर, बिजनेस मैगजीन्स के ज़रिए, आप डिफरेंट वीडियो चैनल्स के ज़रिए अपने को एक्सप्लोर करते रहें। और जैसे सीए की अगर मैं बात करूं, आप में से जो लोग सीए करना चाहेंगे, तो वहां पर भी आपकी फर्म सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि आप किस फर्म के साथ वर्क करने जा रहे हैं। यानी आपकी ट्रेनिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आप क्या जिस फर्म के साथ आप एसोसिएट हैं उसके पास कितना वर्क है, वो जितने जो जो वो वर्क आपको देगा, जाहिर सी बात है कि आगे जाकर आपको इंडिपेंडेंटली वर्क करना है, तो आपका एक एक वहाँ पर मिनट जो है ना, वो कीमती होने जा रहे। तो ये सारा हमारी वो सारी स्किल्स हैं जिन्हें हमें थोड़ा सा अपने को अपडेट करना है। और इसी अपडेट के साथ मैं जैसे मैंने इस सेशन का टेक अवे आपके लिए पहले से नोट किया हुआ है कि आप क्या करेंगे। सबसे पहला जो मैंने किया है, ये हालांकि टॉपिक से कनेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको मेंशन कर दिया कि अपडेट योरसेल्फ विद करंट अफेयर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन और वर्ल्ड इकोनॉमी। यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं मेरा इस करंट अफेयर के साथ या जीएस के साथ आपका कनेक्ट बनाने का क्या मकसद है। मेरा मकसद यह है कि आप आगे जाकर सिर्फ आप एमबीए नहीं करना है, आपको आगे जाकर आपको सिर्फ सीए नहीं करना है, आगे जाकर आपको क्योंकि आपके पास टाइम होगा, आप सिविल सर्विस भी प्रिपेयर साइड बाय साइड आप कर रहे हो, और अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एक डीएम बन के हमारे सामने आते हो, अगर आप एक फाइनेंस डिग्री लेकर आप मेरे सामने हमारे सामने डीएम बन के आते हो, तो हमें खुशी होगी कि आपने इस सेशन से कुछ लिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक बैक एंड से अपने लिए एक पूरी प्लानिंग बना के चल रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है। अब अगर आप ये बात करेंगे कि कॉमर्स में सीए में 8% और 9% और 10% का रिजल्ट रहता है, दैट मीन्स 90% फेल होते हैं और 10% ही पास होते हैं, तो इसका मीनिंग यह है कि आप एक गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सीए का कोर्स बहुत इजी है और उसमें बहुत जल्दी आप सक्सीड कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, और कंटिन्यूस लेबर करना है, आपको कंटिन्यूस वर्क करना है, और अपने स्टडी को अगर आप प्लान वे में लेके जाते हैं, तो आप ये देखिए कि वो 10% जो है ना, वो भी तो सक्सीड जो हो रहे हैं वो आप ही के बीच में से निकल के गए हैं। आपको ऐसे लीड करना है, अपने को ऐसे जगाना है, और ये हर बच्चे में ये काबिलियत होती है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट मैंने आपको एक रीडिंग हैबिट के लिए बोला है कि आप की जो आदत है वो रहनी चाहिए। आपको केस स्टडी करने की आदत डालनी है। अगर आप फाइनेंस फील्ड में आ रहे हैं, आप इतने बड़े वेंचर्स में जाने की बात अगर उम्मीद लगाए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर भी अपने को अपडेट करना है। अगर आप ये करके ले जाते हैं तो इंशाल्लाह एक ब्राइट फ्यूचर आपके पास रहेगा। आगे मैंने जो आपको पहले भी बताया कि इन्हेंस योर सॉफ्ट स्किल्स, बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में काफ़ी मैंने ये डिबेट चलती रहती है कि कोई बच्चा है जो सीए कर चुका है लेकिन उसको एक अच्छी ओपनिंग नहीं मिल पाई, एक अच्छा जॉब नहीं मिल पाया, या एक एमबीए करने के बाद एक अच्छा जॉब नहीं मिल पाया।
नो डाउट कि MBA में इंस्टीट्यूट मैटर करता है, लेकिन फिर भी अगर हम ये कहते हैं, ये एक छोटा सा एक्सक्यूज देके और बच निकलते हैं कि भाई अच्छी ओपनिंग नहीं मिल पाई, दैट मीन्स मेरी अपनी प्रोफेशन में कमी रही है। तो आपको ये पूरा जो 4 साल का टाइम होगा, ये 5 साल का टाइम होगा, ये आने वाला टाइम आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इन्हांस करना है। इसके बाद मैंने आपको दिए है एक होमवर्क, दैट इज वर्क ऑन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। ऑब्वियसली कि अगर आप कॉरपोरेट में आने की सोच रहे हैं तो आपको शाइनेस से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको विजिबल होना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आप में से होते हैं, जो इतने ज़्यादा शाय होते हैं कि वो अपने को हाइड रखते हैं। आप देखते होंगे कि आपके क्लास में भी कभी एक कुछ बच्चे न्यू एडमिशन होते हैं और वो पहले ही साल हेड बॉय या हेड गर्ल बन जाते हैं। तो आपको उस कैरेक्टर को, उसके कैरेक्टर को एनालाइज करना है कि आखिर उसमें ऐसा क्या था और मुझ में ऐसा क्या नहीं था। आप अगर अभी से इसको रीथिंक और थिंक आउट करते जाएंगे तो आप इंशाल्लाह इस कॉरपोरेट वर्ल्ड में, जो कि कॉमर्स और फाइनेंस का मेन डोमिनेंट एरिया है, आप सक्सीड कर जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर मैंने आपको सैंपल ये बताने की कोशिश की है कि नेक्स्ट 5 इयर्स, ये अगर आप 60 मंथ्स बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करें और एक लगन के साथ, एक स्मार्ट वर्क के साथ आप आगे आएँ, तो इंशाल्लाह आप के जो आने वाले साल हैं, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, तो आने वाले 60 साल तक आप एक अच्छी हैप्पी जर्नी, जिसे हम कह सकते हैं कि इंशाल्लाह हैप्पी इयर्स अहेड। ये मेरा आज का मंशा थी आपके साथ शेयर करने की। और अगर कोई भी डाउट है आपका जो इस सेशन में अगर हम नहीं कवर कर पाए, तो इंशाल्लाह आप मुझे मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू मैम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। यस मैम, प्लीज़। Yeah, thank you, sir. We will start the Q&A session now. यस First प्लीज। question. First question is, I have heard that in Islam, job in banking sector is haram because of interest. Then can we make a career in it? Over मैं to you. इस क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकता। ये आप मेरे ख्याल से अपने फैमिली के जो आपके एडवाइज़र्स हैं, जो इस्लामिक मैटर में डिस्कस कर सकते हैं, आप उनसे ज़िक्र करें तो ज़्यादा बेटर है। और हम अगर हमारे पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाहर जाने के लिए हमारे पास मौका है, तो इस्लामिक बैंकिंग और शरिया के हिसाब से हम लोग काफ़ी मुल्क हैं जहाँ पर वर्क कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में भी। लेकिन बाकी जो है वो एक क्योंकि वो मेरे डोमेन में नहीं आता, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि फिर आप अपने फैमिली के जो भी जहाँ पर भी आप रिलीजियस मैटर डिस्कस करते हैं, आप उनसे डिस्कस करें Okay. प्लीज़। Next, sir, can we have more explanation about government jobs after graduation? यस ऑब्वियसली अगर हम कॉमर्स से भी अकाउंटिंग, मैंने बताया कि अकाउंट्स में भी आपके पास सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के थ्रू भी अगर हम लेवल 1 की बात करें, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी गवर्नमेंट जॉब्स में ओपनिंग होती रहती हैं। लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है, कंपटीशन टफ है, तो आपकी प्रिपरेशन फिर उसी हिसाब से होनी चाहिए। कभी कभी हमने देखा है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को बहुत लाइटली लेते हैं हमारे बच्चे, और हम एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो जो एग्ज़ाम भी हमारे पास नियरेस्ट होता है हम उसमें अपेयर हो जाते हैं और विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो इट would be better to you to go with any type of competitive exams with proper preparation. The next question is, how to do Yes. BCom and B.Ed integrated course? In your opinion, doing integrated course for BCom and B.Ed is good? Can you please enlist some good colleges for integrated course for BCom and B.Ed? Yes, that the time will come
with the integrated courses and dual degree courses. And as per the new education policy, right now, obviously, this is not applicable for the current session. I observe in the very few websites right now. So that is good to you for doing for entering in the B.Ed segment with the integrated course curriculum. Or kindly send me your mail ID to inshallah I'll send you the listed universities in this domain. Okay. Next is, which college is best for CA course? CA actually ICA इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया की तरफ से कोर्स होता है. ये किसी कॉलेज की तरफ से नहीं होता. आपको ICAI की वेबसाइट को विजिट करना होगा. और जैसा कि मैंने बताया कि इफ़ यू आर 10+2 तो यू आर एलिजिबल फॉर फाउंडेशन एग्ज़ाम. तो फाउंडेशन एग्ज़ाम के द लास्ट डेट विल बी ऑन 30th of June. तो अगर आप इंशाल्लाह रजिस्टर कर लेते हैं वेबसाइट के थ्रू, तो फ्रॉम ऑल ओवर द फ्रॉम ऑल द सिटीज़ ऑफ इंडिया यू कैन अपेयर विद एग्जामिनेशन एंड CA. तो वहाँ पर आपके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. देयर इज़ नो पर्टिकुलर कॉलेज affiliated with CA इंस्टीट्यूट. इनका अपना ही एग्जाम होते हैं. हाँ, डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, ऑथोराइज सेंटर्स होते हैं. दैट विल बी लिस्टेड ऑन वेबसाइट कि आप जब आप अपेयर होंगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको अपना कॉलेज अपने ही सिटी में दिखाई देगा इंशाल्लाह. So there is no need to search anywhere. Just go to ICI website, in the Institute of Chartered Accountancy of India. You may get all the details from there. Okay. Yes, What please. is the combination of BCom honors and HR management? Yes, that's a good combination. If your goal to enter an HR domain, that would be beneficial to you in both aspect, because some of the core topics of HR management you already studied in BCom honors. So actually, अगर मैं आपसे बात करूं, if as I earlier informed to you that to enter a field in corporate world, there is no matter for the percentage of 10th and 12th in graduation. The major area is the major thing is your degree, your expertise एज ए MBA कैंडिडेट. तो अगर आप वहाँ पर अपने को एनहेंस कर ले जाते हैं, वो जो 2 years का आप MBA करेंगे, वहाँ पर आपका क्या एक्सपोजर होता है, दैट विल बी मीनिंगफुल टू यू rather than go with a specific degree like BCom honors or BCom pass. That's no major significant in both the degrees. Yes, please. Can we pursue CA and CS together? CA and CS together. yes, in most of the cases when you go in any professional examinations like a CA and CFA, CA and CS, then you will find some type of exemptions on a paper also. So there will be no issue for you. Okay. What are the criteria for doing CA? I already showed you my slide that before entering after the 10+2 level, you must qualify the foundation course, and after that, after passing the foundation course, you will enter in CA intermediate exams. And after graduation with 55% percentage and with the commerce, then you will take direct admission in intermediate course, and thereafter the final examination, inshallah. Next question. I'm already studying in BCom and it would be difficult for me
to do CA or any professional courses due to my family problems. He's the only earning person in the family. What should I do? Yes, in that case, if you are not able to go anywhere, the first thing is CA and CS course. That is almost, you can say that these are the almost a distance learning program, some types of distance learning program. No need to go anywhere. If you are residing in major cities like CA test centers are all over India. Alhamdulillah, we are having CA centers in major cities and type B cities. So there will be no issue to for you for doing CA and CS as well. और इन केस अगर आपका इसमें भी एक्सपर्टाइज इतना ज़्यादा नहीं है या आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में यू मे चूज़ टीचिंग करियर. आप टीचिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं. वहाँ पर फिर आपको जाहिर सी बात है कि यू मस्ट गो फॉर BA डिग्री, और इफ़ यू वांट टू गो फॉर यूनिवर्सिटीज़, सो देन you may enter an PhD course and UGC NET examination. And the last shortcut जो मैंने अभी आपको slides में भी show किए थे, the last option is a short term option. Obviously जो आपको बहुत ज़्यादा आसानी की वहाँ पर salary options बहुत ज़्यादा रहते हैं, but हम accounting firm में job तो कर सकते हैं. तो by doing BCom and BCom honors or BBA with some specialized software courses in accountancy. Yes, ma'am. Please. Is ACCA and CA the same? No. CA is regulated by ICAI, or ACCA you have to register with the international body. वो आपको अलग फिर डोमेन मिलता है. Okay, next question. CA, CFA or MBA Finance? Yes, यहाँ पर as I already show my slide, it depends what will be your career option. Means if you want to go with auditing and taxation, then definitely CA will be best. And in case if you want to enter in a finance field, so is at that case the CFA and MBA finance, if you got admission, if you get admission in a top business college, so definitely MBA finance will be better to you. बट अगर आपको MBA फाइनेंस में टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका CFA में आप एंटर कर चुके हैं, तो फिर आपको फिर वहाँ जाना चाहिए, MBA मैट से नहीं जाना चाहिए. Yes, ma'am, please. Okay, next. After completion of CA course in India, which foreign company can I seek jobs? Would doing so require any more upgradation? Not necessarily, but I earlier informed to my dear student that if you want to go abroad India, means you have to include some international bodies curriculum, as well as means international certification as well as और अगर आप वो प्लान करते हैं कि डुअल मोड में आप CA plus CFA कॉम्बिनेशन लेके जाते हैं, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू, बट इट but there's no compulsion for you. Okay, I think this is the last question we have. Can you give us more information about ACCA? Yes, I have my slide. There are 3 levels. I'll show the slides right now. But in ACCA, I'm not much comfortable with
the details right now. So, ma'am, kindly take the mail ID of this student, and inshallah, I'll revert directly Okay, to they have him. not. Okay, this is an anonymous attendee, so there's no information available. Okay. Mm. Okay. Okay, I think with this we have come to the end of this session. Thank you very much, sir, for your valuable time and expertise. It was indeed a very Allah Hafiz. insightful session. I hope it's benefiting all the students and it will help them in Inshallah. choosing a right career and following their dreams. Thank you, everyone.